प्लीज अपनी सीट पर so much, Mr. Ali Khan Sawati. And we were supposed to fly. We were supposed to make these 70 years, 80 years, 90 years on this planet a wonderful adventure. We were here to connect with each other. We were here to make a difference, and we are stuck with this. आवाज कर, वो मुझे देख रही है नहीं देख रही. It's good. So basically what it's doing is this: we have all the hotel bookings, so you can have all over the world. country, I thought it's for only Pakistan. No, it's all over the around world. the globe. All So over the world. Oh, that's have really around nice. we have an international contract right now, so we can have around about 2 lakh. You belong to which this one? You pilot this project? Yeah, we pilot this project. So if we go to Dubai, so you'll see all the Dubai hotels and all Will that it work everywhere? everywhere. It's That's going to be nice. launched in देश में December. पाकिस्तानी है कहीं वो ना ही जाए स्टार्ट की ना हो जाए No. चल जाएगा Yes, obviously. So यूजुअली चलते नहीं है ना so the difference biggest is this: we have tour operators, we have cities, we have car rentals, we have our own shop in this where you That's can sell nice. the products. We have the biggest database of cities, so you get to know about हमारे हुंजा का है Islamabad. Yes, Hunza. So which area of Hunza? अलीबाद Aliabad. I visit there every year. It's one of my favorite. One of my friend is वो मीर of Hunza वाले नहीं है जो गुजाल अच्छा so जो अताबाद बेक के ऊपर आते हैं पूरा गाँव जो है अजलाल अजलालपुर जलालपुर जानता हूँ I know. आले वो कर्नल शेर खान साहब अच्छा ठीक so they are family friends also. Okay, very nice. And surely there will be Murray. Surely there will be Murray also. Yeah. ये दो चीजें तो हैं हाँ. पाकिस्तान में So we have all the Tourist social point. media Exactly. as well. That's nice. You can interact with each other. You can talk to each other. You have messages. You That's can, amazing. talk to each other on social media as well. So it's a one-stop shop for whole travel and tourism industry. We are already in partner with Ministry of Planning. We are in partnership with Ministry of Culture and this local side. हमारी यूनिट में एक गवर्नमेंट बॉडी है इट्स कॉल्ड LGNRD Okay. so LGNR. मैं just I'm a social media manager for some of the private companies Okay. just as a friendly suggestion may आपको दे दूँ better to talk to them because I know that in the peak season of June and July there are people they are unable to find their places they are unable to find they will go door to door knock the door and ask the people that do you have something I to agree. stay And the other app we have, you might like this one as well, is safety and security for women and children. So basically what happened is this: we are giving online therapy and counseling anonymously. Then we have in this we have Ministry of Planning. We have phobias. If you have any phobia problem, how to get Cope rid of with that. those phobias. Then we have, if you have legal aid problems, we have lawyers. is it available on Google Play Store No, in December. December these both will be launched because Ministry of Planning is our partner, so we have our KPIs. So we are following. They are funding us, so obviously we are following their KPIs on this. So we have lawyers where you can have laws. You have NGOs where you can take help. This is paid. This is not paid. This is not paid. So few things are free. Few things are. We have news section where you have all the news articles, information about what to do in what situation. We have podcast where you can have whole situations where you have the topics where you can tell about each and everything. You have a quick one where you can have every province has their own helplines. So if you'll be in Gilgit, you'll have those helplines. If you'll be in Islamabad, you'll have those helplines. Is this mentioned in this brochure?
also? Not really, but on the websites these are things. Okay. And we have SOS button where you send. What was the name of this? Fala. Fala. Okay, okay. So all the what exactly it does is this: it records your 1 minute recording with your live tracking, and send your locations to your loved ones and to the authorities. So That's they awesome. can track you down and they can check you out and they Well, can help retrieve you. just to get to know more about this thing, I Yeah. don't think so कि इतने क्विक सर्विस है, तो मुझे तो आपकी बात नहीं, लेकिन रियलिस्टिक लग रही है। लेकिन आपके अपने फैमिली मेम्बर हैं, आप अगर आपका बच्चा है और वो आपको अलर्ट भेजेगा लाइव लोकेशन के साथ, आप नहीं No, कहोगे that's amazing. Yeah. यू विल। मुझे था कि आप शायद शेयर कर रहे हो हम किसी कर बोरे के हम साथ। अगर ना आप आजादी से अपने बच्चों को घुमा सकते हैं, आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगी और आपके उस पैसे का कोई फायदा नहीं। तो इंडिविजुअल जो सक्सेस है वो सक्सेस नहीं है। आपने गाड़ी ले ली, अपने नहीं ले लिए। हमने क्या करना है कि हमने इंपावर करना है पाकिस्तान को। हमने पूरे, अगर हम सब खुशहाल हैं तो हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। बाहर जब मैं जाता हूं, मैं घूमता हूं, देखता हूं, तो एक ही लाइफस्टाइल है, वो सारे खुशहाल हैं, वो सबका एक स्टैंडर्ड। हमारे कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा है, वो कहता है बस मेरे पास ही रहे, दूसरे के पास ना रहे। तो आपने जो सोच रखनी है वो ये रखनी है कि पहले मैंने खुद, फिर अपनी फैमिली को, फिर अपने यारों दोस्तों को, और फिर पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मेरे पास तो वैसे तो मैं बहुत कुछ ऑनलाइन में करता हूँ, लाइक डिजिटल थिंग्स। मेरी जो बेसिक अगर मैं कहूँ तो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे शोबे आ जाते हैं। उसके अंदर मेरी एक स्पेसिफिक जो है वो एसईओ है। इसके अलावा मैं अमेज़न करता हूँ, और इसके अलावा मैं एफिलिएट करता हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, उनके साथ मैं वो काम करता हूँ, और लाइक बहुत सारी चीज़ें मिलके हैं। लेकिन अब सारी चीज़ें यहाँ तो नहीं हो सकती उसके अंदर। तो इसके अंदर स्पेसिफिक हम बात कर ले तो जो इजी, जो आम लोग भी स्टार्ट कर सके, जो उनका सिस्टम स्टार्ट हो सके, वो कोई ना कोई ऐसी स्किल जिससे आप काम कर सकें। उसके अंदर अगर हम डिजिटल थिंग्स की बात करें, अगर हम फाइवर की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, तो उसके ऊपर यार प्लीज ऊपर हम मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर यूट्यूब के, अगर आपने मेरा यूट्यूब देखा तो उसके अंदर मैं बताता रहता हूँ कि यार ये वाली स्किल्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो आज हम ब्लॉगिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, सर्विसेज के बारे में भी बात कर सकते हैं, एसईओ के बारे में भी बात कर सकते हैं। जिसके ज्यादा जो आप चाहेंगे हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। SEO. अच्छा, सुनते जाएं बारी बारी। प्लीज खड़े होके जरा प्लीज बताएं, जरा सबको पता चले कि अच्छा, सबको ये चीज तो पता है कि किस चीज से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है। फ्रीलांसिंग में कौन कौन सी स्किल्स हैं सबको पता है। ब्लॉगिंग है, और इसके अलावा जो तो वेबसाइट डेवलपमेंट है, बाकी ऐप डेवलपमेंट है। अभी ये है कि एक न्यूबी आ गया है, उसने स्किल भी सीख ली है, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया। वो जब ये मार्केट प्लेसेस पे जाता है तो वहाँ उसको खुद को किस तरीके से बेचना है, खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, एक स्टार्ट किस तरीके से देना है। अभी जैसे 2017 में आपके पास ये हमारी मुलाकात हुई थी, वहाँ पे CPC हो रहा था मेरे ख्याल से। उसके बाद आपका दूसरा फिर CPC आपने फिर आप नहीं आए दूसरे में। तो वहाँ से मैंने जो है तो 2D एनिमेशन में और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें मैंने काम शुरू किया, बहुत कुछ सीखा। लेकिन अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ खुद को बेचने में। मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं आउटसोर्सिंग वाला काम कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा चंक जो होता है तो वो दूसरे बंदे को जो कि डाउन सेलिंग कर रहा है उसको बच रहा है। तो मैं खुद को किस तरीके से स्टार्ट, किस तरीके से पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करूं। ठीक है, एनी अदर कुछ और ऐड करते जाए ना, फिर ऐसा एक दफा कंटिन्यू करूंगा ना, फिर सारी चीजें कवर होती जाएंगी। जी प्लीज। बिजनेस कर रहा हूँ मैं, एक स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन अपने बिजनेस। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारी जो है वेबसाइट रैंक हो जाए। आज उसी के उसके ऊपर बात करेंगे। हम किसी भी एक टॉपिक को पकड़कर उसके ऊपर हम पहले कंटेंट को देखें। देखिए, मेन चीज है आपका कंटेंट। अगर आपकी कंटेंट की क्वालिटी है तो देन आप उसको बेटर कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं चैट जीपीटी। अब एआई का जमाना है। अब जब आपके पास एआई आ गया है, इसका मतलब ये है, अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि यार एआई, मैंने आज तक एआई का कंटेंट दोबारा किसी से रीफेस नहीं किया,
किसी भी टूल से, मैंने इंशाल्लाह हम लिखेंगे इस तरीके से कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम आपको वो उस मेथड से बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से मैं लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ। अच्छा, तो हम कोई भी एक, पहले हम नॉर्मली जनरलाइज करते हैं ना, लाइक किस तरीके से। अच्छा, AI इज लाइक, ये मेरा समझे राइटर है, ठीक है, और मैं इसको बता रहा हूँ और ये आगे AI को बताएगा। अच्छा, AI के अंदर ऐसा नहीं है कि आपने इसको इंग्लिश में ही बताना, आप इसको उर्दू में भी बता सकते हैं। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं कि भाई मेरा इस तरीके से ये मेरी वेबसाइट है, ये चीज़ है। हर तरीके से हम इसको यूज करना आज सीखेंगे कि क्या है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक के ऊपर आप स्टार्ट कर दें, कोई भी एक टॉपिक बता दें, उसके ऊपर हम सर्विसेज का देख लें। हाँ, बता दें। आप सर्च करें, ये मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं क्या सर्च करूंगा कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आऊँ, आप वहाँ सर्विसेज दे रही हैं, आप वहाँ इंफॉर्मेशन दे रही हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो इनकी जो ब्लॉग की इंटेंट है वो है इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये मेन चीज है। अभी इन्होंने कहा सर्विसेज होता तो हम ओ टाइप पे जाते, इंफॉर्मेशनल है ओ टाइप पे, हम सर्विसेज पे भी जाएंगे। जो बहुत सारे लोग सर्विसेज है, फोन अपने साइलेंट पे कर लें प्लीज, हम उसके ऊपर भी जाएंगे। अभी इंफॉर्मेशनल के ऊपर जाते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशनल आप एक जनरल ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं, लेडीज को कर रही हैं, जेंट्स को कर रही हैं, या सबको कर रही हैं? सबको कर रही हैं। क्या आप प्रोवाइड क्या करें, यानी क्या सर्च करें कि हम आपके पास, आपकी वेबसाइट पे क्या स्पेशल है? आपने मिस कर दिए हैं ये कुछ वर्ड, दैट्स मीन कि वो वाले मीनिंग जो हैं, वो जो गूगल उसके अगेंस्ट दिखा रहा है, वो उसको हमने ऐड कर दी कि यार ये बीच में ऐड करो, तो उसमें एक यूनिक वे से कॉपी भी ना हो, उनका जो उन वर्ड्स का मीनिंग है वो कर। ठीक हो गया? अच्छा, अब दूसरी चीज आ जाती है हम, और इसी के अंदर बहुत ज़्यादा बनाई हुई है। Yeah, that's why my director has sent me. Actually, I'm serving at the company at night from 10 p.m. till morning 7 a.m. And then he called me at 5 or 6 and was like, just go and take some rest, and then he will attend the conference. I said, yeah. Then you are... I'm a trouble teacher and everything. I have coordinated. That's what this conference is. Connected. Please don't be disconnected. Are you with me? Yes! Wonderful. So put your one hand up. And after you need to do something to my slides, put your other hand up. Wonderful. That looks very nice. Thoda sa khole. Feel like Shaheen Afridi for a second. ये जरा हाथ हिला ले इधर उधर. ये आपकी वर्चुअल झप्पियां हैं एक दूसरे को. कुछ लोग असली भी लगाने आए हैं अल्लाह आपको भी कामयाब करे, लेकिन मेरी गुजारिश है कि वर्चुअल झप्पियां जरूर लगाएं. इतने लोग आपके सामने हैं और इतनी कहानियां हैं. क्या ये सब हादसा है? आप चाहें आप
जिंदगी को सब कुछ हादसा मान के छोड़ सकते हैं। आप चाहें आप हर चीज में मकसद तलाश कर सकते हैं। आप जिसके पड़ोस में बैठे हैं, जो आपके आगे बैठा है, जो आपके पीछे बैठा है, गुजर जाए वक्त या आप मुड़ के ताल्लुक बनाएंगे। ताल्लुक बनाएंगे तो जिंदगी भर साथ रहेगा। और अरसलान और टीम की भरपूर कोशिश यही है कि हम आपस में कनेक्ट हो सके। This country is very disconnected from each other, so we've got to do that. I hope you're with me on this. Let's see if the slides are up, Atif. No, that's not out there. There is a iTunes music also playing. You need to pause that first and then put the slide again. Okay, wonderful. मैंने आपसे कहा था हाथ जरा दोबारा उठाएं, इनको अपने सामने ले आए। अब ये काम मैं 2 सालों से करा रहा हूँ, शायद आपने देखा होगा। थोड़ा सा हिले। वंडरफुल। कुछ लोगों की सारी मूवमेंट खत्म हो चुकी है। अब मैं इतना जवान नहीं हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरे बच्चे हर वक्त इस मूवमेंट में लगे हुए होते हैं। उन्हें हर वक्त कुछ चाहिए होता है, जैसे आप और मैं भी चाहते थे। एक बार निकालें ये हाथ, हिलाएं उंगलियां, मस्ती से हिलाएं जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं 3000 लोगों के सामने ये बेशर्मी कर सकता हूँ, आप अकेले में नहीं कर सकते। प्लीज कर ले, कम ऑन। और हिलाएं। याद करें वो वक्त जब आपने माँ बाप को शर्मिंदा किया था, जब आप कोई चीज नहीं छोड़ते थे, जो मिल जाए आप उठा के उसको चखना चाहते थे, जो सामने आए आप उससे कनेक्शन बनाना चाहते थे। हर चीज एक एडवेंचर थी। You and I were born like that. What happened then? Why is it that 15 मिनट लग जाते हैं कि सलाम का जवाब निकल सके, एनर्जी देख सके? I'm gonna do something that will help you understand this, and this is not just your fingers, this is your mind. ये सेशन है माइंड मेज। So help me with this. Once again, निकालें हाथ, हिलाएं उंगलियां, और इनको हमने जोरदार अंदाज में बंद करना है ऐसे, okay? I want to hear a sound. We're gonna do this together. Thank you. अब एक बार करेंगे और आवाज बंद हो जाए और खामोशी सुनाई दे हॉल के अंदर, okay? Loud sound and खामोशी. Come on. हिलाएं. No. I'm gonna say when to shut it. First, take your hands out. हिलाएं. Shut. एक मरतबा पे। ये आवाज है आपके ख्वाब बंद होने की। ये आवाज है आपसे आपका शर्फ लेने की। ये आवाज है आपको ये बताने की कि आप सुन्नी हैं, आप शिया हैं, आप पाकिस्तानी हैं। ये आवाज है आपके ऊपर हर वो ठप्पा लगाने की कि तुम पढ़ने वाले हो, तुम VIP हो, तुम प्रिविलेज हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम शहर के हो, तुम गांव वाले हो। और ये वायरिंग बंद करें और इसको चलाते रहें। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, मैं 37 साल का हूँ और हो सकता है कि मैं वही वायरिंग चला रहा हूँ जो 7 साल मेरे अंदर डाली गई थी। जिंदगी के पहले 7 साल इस तमाम वायरिंग को बना देते। ये मेज आपके सामने, जरा आवाज बढ़ाएं। हम उड़ने की बात कर रहे हैं और उड़ना मुमकिन नहीं है इस सोच के खुले बगैर। So once again, take your hand up. The other hand. This is the maze. Welcome to the mind maze. We were not born like this, but something happened. And not something a lot happened. And we're going to try unpacking that together in this short while. Thank you very much, by the way. Give yourselves a big hand. Let's go to the next slide. कुछ लोगों का दिमाग, और आप चाहे ना चाहे दिमाग इस वक्त भी चल रहा है. If you pause for a second right now, take a deep breath. और अब अपने दिमाग को ऑब्जर्व करें तो दिमाग चल रहा है। किसी के दिमाग में चल रहा है पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं, किसी के दिमाग में चल रहा है पता नहीं कब तक चलेगा, किसी के दिमाग में सुबह से वही चीज चल रही है जो चल रही है, किसी का दिल 6 महीने पहले टूटा था अभी तक वही चल रहा है, रोजाना सुबह उसी पैगाम की तलाश में होता है।
कुछ लोगों का सोशल मीडिया से दिल नहीं भर रहा, कुछ लोगों का मशहूरी से दिल नहीं भर रहा। यहाँ लोग आते हैं, उनके साथ 3 लोग आते हैं, एक कैमरे वाला, एक वीडियो वाला। माइंड में दिस इज द शर्फ वाला इंसान जिसके सामने गुर्बत है, जिसके सामने हिस्सेदार नहीं है, जिसके सामने तालीम नहीं है, जिसके सामने अच्छे सियासतदान नहीं है। आप गिनते चले जाए और ये उन तमाम चीजों का सिर्फ इजहार करना चाहता है टिकटॉक के ऊपर कि इस मुल्क के लाखों लोग मुझे जान जाए, मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। शर्फ इस मेज के अंदर जहां कुछ लोग पैसे बनाने की फैक्ट्री बनना चाहते हैं और कुछ लोग मशहूरी की फैक्ट्री बनना चाहते हैं, और आप गिनते चले जाए। The question is, what are you seeking? And you don't have to take my words, but at least think of this maze, because you are living this all this life. इंसान चाहे तो जेल में आजाद हो सकता है और चाहे तो आजाद होते हुए जेल में हो सकता है। इंसान का जेल कैद खाना नहीं होता, इंसान का जेल उसका अपना दिमाग होता है जो कि मुसलसल चल सकता है। मेरी शख्सियत एक एडिक्टिव शख्सियत है, मुझे जिस चीज की लत लग जाए मैं सुबह शाम दिन रात वो करता हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हम मुख्तलिफ मिजाज रखते हुए इस मेज को अगर कॉन्कर ना करें, then what have we achieved? You make 10 businesses, they make $1 million each one of them. You are a millionaire. Oh no, you are a billionaire. But you never looked into your own mind. You never looked inside. And what are you going to leave behind? Just these brands and businesses? Or a story that will be told for generations to come? So the choice is yours. You can let this maze be, or you can do things with it. Power is not you running on your thoughts. Power is you determining your thoughts. We have the power to turn this maze into a beautiful space where everything grows, where every human connects, where every day is progress. The maze. आपने यहाँ जो हकीकत, और आपने अगर ना भी बनाई, जो आपको मिल गई, लेकिन अगर आप उसी पे रहते हैं तो ये आपका इंतखाब है, ये आपकी चॉइस है। So please, while you are here and in the 3 days you experience a whole lot of ideas of the outside world, of the digital world, remind yourself of what Mullah said, कि तू आसमानों की बात करता है, तू सितारों की बात करता है, नई बात करता तो अपनी नहीं करता, नई खजाना ढूंढता तो अपने अंदर नहीं ढूंढता। ये दिमाग जिसमें फलसफी कहेगा कि पूरी दुनिया के आसार छुपे हुए हैं, साइंसदान कहेगा कि जो पीरियोडिक टेबल बाहर है वो सब इंसान के अंदर है। All the nature that we experience outside, in fact, let me tell you, reality is nothing. You don't see the world as it is, you see the world as you are. आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं, और आप जो हैं वो आपका ये दिमाग है। इस दिमाग के ऊपर very quickly, let's keep moving. We're going to do this fast pace. Next slide, please. Mind maze. Are you clear about this idea? Mind maze? Yes? Yes. Can I hear a louder yes? Yes. अच्छा, कितने लोगों के मेज वैसे वाकई कॉम्प्लेक्स मेज है? हाथ उठाएं। नेविगेट करना मुश्किल होता है। जिन्होंने हाथ उठाया है ये तो दिलेर आदमी है, इनके लिए तालियां बजा दें। जो भी लोग अपने दिमागी हालात की बात करें उनको दाद दें, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बात ही नहीं करते और वो मेज में जीते रहते हैं। यहाँ बैठे हुए लेकिन दिमाग में अपने मेज में। We absolutely have the power to be here and to not be here. Now, while those of you who didn't raise your hands, can you put your hands up? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, I want you to know कि इस दुनिया का कॉम्प्लेक्स तरीन स्ट्रक्चर इंसानी दिमाग है, और शायद इंसानी साइंस ने जितनी चीजें जानी है उसमें जो सबसे कम जाने हैं वो इंसानी दिमाग को समझ सके अभी तक, और जितना जाने हैं उसकी बेसिस पे आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज मौजूद है। The little that we understand of the human mind. So it's a powerful idea, and I don't claim to be the expert, but I'm going to give you some thoughts that will be very helpful. Other, keep moving. This mind maze is determining your vibe right now. कुछ लोग हैं जिनके पास लोग जाना नहीं चाहते, सड़े होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि मकनातीस बने हुए होते हैं। What they are acting out
The wiring inside is determining. Let's look at that. Who does that, sir? And who does that, Ibrahim? And sir? And then the smile. And ma'am? Seem like a pilot lady. कौन कर रही है हरकतें? हो रही है ना? आपने कब सीखी है? और जिस तरह से ये हो रही है इसको और कॉम्प्लेक्स करें। बहुत सारे लोगों को देख के आप वैसे ही खुल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देख के आप बंद हो जाते हैं। हो सकता है बंद होने वाले कोई ऐसे लोग हो जिनका ताल्लुक आपके किसी ट्रॉमा से हो। कुछ कौमें हैं जिनको आप पॉजिटिवली देखते हैं, कुछ कौमें हैं जिनको नहीं देखते। जिन बिलीव्स को हम स्ट्रांगली ऑन कर लेते हैं उनके बारे में हम कोई और राय नहीं सुनना चाहते। हम ये वक्त सियासी तौर पे इस वक्त देख रहे हैं। This mind maze is all the time. What you are right now, what I am being right now, is a function of my wiring. So hey, let's do this again. Open this. Hilai. Band. आज इसको खोल लो और इसको देखें कि मैं क्या बन गया। ये ना कहें कि मैं ये हूँ, ये जो सीख लिया ना, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला, आप इसमें से कुछ भी नहीं है। ये सब आपने सीखा है। जिस तरह मैंने ये काम सीखा है। मेरे अब्बा HR में थे, 40 साल जिंदगी के HR में लगाए। मैं ट्रांसपेरेंसी उनके पावर पॉइंट 97 एडिट करता था। ये मेरी वायरिंग में है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्रोफेशनली नहीं सीखी, मैंने घर से सीखी। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे रवैये सीखे। मेरा ननियाल देने वाला था, मेरे अंदर देने वाला जज्बा आया। To not own anything for myself only, but to see how it can help others. You also carry that. So please look at this. Please look at this. And when you will look at this, something amazing will happen. Zara aise kare haath sare. Stay disconnected from our own emotions. And a whole lot of our fathers were like that. Very, very stuck up. And therefore men today feel so reserved, expressing, feeling those emotions and being able to use them smartly. So this heart is also pumping. Akhir, if you can keep moving. We got little time. Now this heartbeat, इसी दिल की अगर आप इस वक्त चाहें, दिमाग की ताकत देखें, कंधे सीधे करें, सांस गहरी, फिर और गहरी। हाथ में उठा रहा हूं, आप ना भी उठाएं तो फिर गहरी सांस। तो आप देखेंगे कि आप अपनी दिमाग की एक्टिविटी रोक सकते हैं। गहरी सांस। जो कुछ सोच में चल रहा होता है रुक जाता है। Easiest way to observe your brain is to take a deep breath. You will have the power to see your own thinking, and that's a very powerful state to be in. But hey, as you did to your mind right now, let's come to your heart. Without touching your heart, feel your heartbeat right now. बगैर अपने दिल पे हाथ रखे हुए अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, इस हंसी मजाक से निकले, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, तो आप बड़ी आसानी से इसके रिदम पे आ जाएंगे। ऐसे जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, but I can fully feel my heartbeat. If you can feel your heartbeat, put your hand up. Very powerful. You are doing what God asked you to do. Listen to your heart. Now this is the rhythm that started not when you were born. This is the rhythm that started in your mother's womb. आपके दिल ने आपकी माँ के पेट में धड़कना शुरू किया है और तब से लेके आज तक। But you don't have time for this, do you? Social media. फलां जा रहा है, फलां की वीडियो लीक हो गई। इसमें बड़ा स्पाइक आता है और मैं आपको अच्छा नहीं बता रहा, इतना बड़ा स्पाइक आता है whenever there is a video leak. Hey, if you do your heartbeat timeline of your life, आप अपने highs और lows जिंदगी के measure कर सकते हैं सिर्फ अपनी ECG line पे. That's how powerful your heart is. It really, the beat of it is telling you a whole lot. तो जब boys पहली मुलाकात होती है, तो दिल के क्या हालात होते हैं? जब एग्जाम सामने होता है तो दिल के क्या हालात होते हैं?
जब सामने आके तकरीर करनी होती है तो दिल के क्या हालात। तो आप गिनते चले जाएं, जितने मौके आप खास सोचेंगे, मुश्किल सोचेंगे, आपकी हार्ट बीट शिफ्ट करती है। आप में से किसी को अगर बहुत ज्यादा शदीद प्यार हुआ है और जब आपने पहली मरतबा उनको देखा था, तो ये भी मुमकिन है कि आपके हार्ट ने उस वक्त की बीट को स्किप किया हो। इट्स लिटरली कॉल्ड दैट, यू स्किप अ हार्ट बीट। What a powerful pump right here. Please attend to it. Take a deep breath, everybody. Give yourselves a big hand. You're wonderful people. इस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार्ट बीट देखें। खास मौके आएंगे जहां आपका दिल जोर जोर से धड़केगा। हो सकता है कि आप उस लम्हे फैसला करें, मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे भरपूर गुजारिश है, जब दिल जोर जोर से धड़के तो उसको धड़कता हुआ महसूस करें, सांस को गहरा करें, ऊपर देखें। आप कहते हैं ना आपके पीछे कौन है, लोग कहते हैं तुम्हारे पीछे कौन है इस मुल्क में। What's the worst? बेइज्जती हो जाएगी, मना हो जाएगा, वो तो वैसे ही हुआ है। But if you march forward, if you don't fight, if you face, ना तुम भागो, ना तुम लड़ाई करो, इस दिल की धड़कन को, इस फियर को महसूस करो और गहरी सांस लेके इस पे rise above करो and act despite. I'm telling you, you will conquer a whole lot. And Quran says कि मोमिन अपने गम और खौफ से आजाद है, यानी वो ये प्रोसेसिंग कर चुका है, इन लम्हात को विटनेस कर चुका है। I request you, in this country the heart is beating, shifting its beat all the time. There is too much happening. Please become aware of this and please use it to become more intelligent. Other, we got little time. Let's close this. While we talk about this, your brain is the complex most. It has 28 billion neurons. 28 billion. इनमें से कोई भी कनेक्शन था नहीं, ये सारे कनेक्शन बाद में बने। सारी वायरिंग डाली गई है, सारी इंस्टॉलेशन हुई है। जो चीजें आपको पसंद, जो चीजें नापसंद, जो आपका यकीन, जो सही, जो गलत, ये सब आपने सीखा है। और इस तरीके से आपका ब्रेन फायरिंग कर करके आपस में कनेक्शन बनाए। एक खास बात जानना जो कि आपको बड़ा हेल्प करेगी, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो चीजें आप साथ करते हैं वो आपस में मिलती चली जाती हैं। कितने लोग किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं जब उससे मिले तो जैसे ही मिलते हैं तो जेब से सिगरेट निकालते हैं और फिर एक सिगरेट पीते हैं। How many of you know such a person? कितने लोग किसी ऐसे शख्स को जानते हैं वो दूर से नजर आए तो आपका दिल चाहता है आप उसकी लें। Yes, it's a silly example. How about you just breathe from your nose? Breathe in from your nose and exhale from your nose. Come on. कितने लोगों को फर्क महसूस होता है सिर्फ नाक से सांस लेकर? Very nice, good. जिन लोगों को नहीं हो रहा, please try it. ये अलग अलग चीजें हैं आपके सिस्टम में और आपकी हरकतों में भी आपकी सांसें सुनाई देती हैं। मैं आपको उलट करने के लिए कह रहा हूँ, अपनी सांस पे तवज्जो दें और सांस से उन हरकतों के बगैर वो महसूस करें जो आपका नहीं है। ई-कॉमर्स के ब्रांड्स नहीं। अगर आप इंडिया की मार्केट देखें तो इंडिया की मार्केट ब्रांड से, स्टोर से भरी भरी है, और हमारे पास क्या है, सिर्फ सी कैटेगरी के प्रोडक्ट ऑनलाइन देखो, उसको मंगवाओ और जब उसको अपने हाथों में लो तो आपको लगता है यार ये क्या मैंने बाय कर लिया, ये इसकी क्वालिटी क्या है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया में। स्टार्टअप इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, ये सब किस चीज पे काम करती है? प्रॉब्लम पे काम करती है। प्रॉब्लम क्या होता है? इंडिया की मार्केट से एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ आपको। बोर्ड के ऑनर को कौन जाता है? शार्क टैंक इंडिया कितने लोगों ने देखा होगा? अगर आप शार्क टैंक इंडिया में सामने जितने जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अगर आप उनके ब्रांड्स देखें तो किस चीज पे, किस कैटेगरी में उनके ब्रांड्स? बोर्ड जो MP3 MP4 प्रोडक्ट ब्लूटूथ स्पीकर सेल करता है, वो मिडिल क्लास पे प्रोडक्ट बेचता है। 3 कैटेगरीज होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अपर क्लास कैसे काम करती है? वो कैसे प्रोडक्ट बाय करती है? वो सिर्फ और सिर्फ टॉप ब्रांड्स लेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड्स लेंगे। आईफोन लेंगे, एयरपोर्ट चाहिए होंगे तो आईफोन के ओरिजिनल एयरपोर्ट्स लेंगे। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो हुदा ब्यूटी या इंटरनेशनल ब्रांड्स बाय करें। ठीक है, तो पाकिस्तान से बैठकर आप अपर क्लास पे प्रोडक्ट्स, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच सकते हो, लेकिन आपका वो बायर नहीं।
लोअर क्लास कैसे काम करती है? लोअर क्लास कहती है कॉपी दे दो 150, 200, 500 रुपए के अंदर रेबेन की कॉपी दे दो, एयरपोर्ट की कॉपी दे दो, ठीक है? वो हर चीज वो प्राइस सेंट्रिक, वो प्राइस पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के ब्रांड पे फोकस नहीं करते। पाकिस्तान में अगर किसी ने ब्रांड बनाना है तो ब्रांड कहां पे बनेगा? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या कहती है? मिडिल क्लास सोचती कैसे, प्रोडक्ट बाय कैसे करती है? मिडिल क्लास की सोच ये होती है कि मुझे हुदा ब्यूटी चाहिए, मुझे एयरपोर्ट्स के लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन मैं 40,000 रुपए के एयरपोर्ट्स बाय नहीं कर सकता, मैं 50,000 रुपए की रेबन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे दरमियान में ब्रांड दे दो जो रेबन की क्वालिटी का हो लेकिन ब्रांड, ठीक है? तो मिडिल क्लास के लिए हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कोई ब्रांड्स नहीं है मिडिल क्लास, मिडिल क्लास पे फोकस करके कोई भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किए जाते। ये वो वाइड कंट्री है जो यहाँ पे खाली 40% आबादी है, 40 से 45% मिडिल क्लास की आबादी है जिनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। वो दराज पे जाते हैं, लोअर क्लास का प्रोडक्ट मिलता है, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेने जाते हैं, बहुत महंगा मिलता है, दरमियान में उनके पास ऑप्शंस ही नहीं है। ब्लूटूथ स्पीकर्स में मुझे कोई ऑप्शन बता दें, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मुझे कोई ऑप्शन बता दें, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ब्रांड बता दें, कुछ भी नहीं है हमारे पास मिडिल क्लास को बेचने के लिए। अगर आप फोकस कर रहे हैं और प्रोडक्ट निकालते हैं, आप कोई प्रोडक्ट निकाल, आप शार्क टैंक इंडिया में जो सामने शार्क्स बैठे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के टॉप के हैं, अगर आप उस पर देखें, सन ग्लासेस का ब्रांड है लेंसकार्ट, किसको बेचता है? मिडिल क्लास को बेचता है। ओरिजिनल वाले एलीट क्लास तो रेबेन ही लेंगे, लोअर क्लास लेंसकार्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकती, लोअर क्लास को ठेले वाला ढाबे से या ठेले से 150 रुपए की ग्लासेस चाहिए, पठान से 150 रुपए की ग्लासेस चाहिए, दरमियान में लेंसकार्ट, मिडिल क्लास के लिए लेंसकार्ट है। बोर्ड किसके लिए है? दरमियान में मिडिल क्लास के लिए बोर्ड है कि हम टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं अफोर्डेबल प्राइस। मामा अर्थ मिडिल क्लास, शुगर कॉस्मेटिक मिडिल क्लास के। तो पहले हमने तो ये समझना है कि भाई ई कॉमर्स में अगर मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं लॉन्च किसके लिए कर रहा हूँ? लोअर क्लास के लिए कर रहा हूँ, मिडिल क्लास के लिए कर रहा हूँ या अपर क्लास के लिए कर रहा हूँ? ये तीन आपके पास क्लासेस आते हैं। अगर आप तक मिडिल क्लास सेलेक्ट कर ली तो दूसरी गलती जो हम करते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स करते हुए या ई कॉमर्स लॉन्च करते हुए, कि प्रोडक्ट तो हम मिडिल क्लास के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हम लोअर क्लास वाली कैटेगरीज को यूज करते हैं। लोअर क्लास जिस तरह सोचती है उस तरह प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग की एग्जांपल देता हूँ, बोनस का आपने ऐड देखा होगा, बोनस अपने ऐड में क्या दिखाता है? एक पेंट दिखाता है, एक चौधरी दिखाता है, और उसने पगड़ी पहनी होती है और उसकी पगड़ी फट जाती है, और एक औरत अंदर से निकलती है और वो कहती है कि आपने साबुन यूज किया था, इस वजह से आपकी पगड़ी फट गई, 10 रुपए का बोनस यूज करते पगड़ी कभी ना फटे, ठीक है? वो क्या, अब उससे अगर मिडिल क्लास बैठी हुई है या एलीट क्लास है जो इस्लामाबाद और कराची फैसलाबाद के लोग हैं, वो उस प्रोडक्ट से खुद को वो नहीं कर सकते कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए। लेकिन जो पेड़ में बैठा हुआ है, जो एक गांव में बैठा हुआ है, वो उस प्रोडक्ट उसके लिए वो प्रोडक्ट है, उसके लिए वो ऐड है, वो वही प्रोडक्ट बाय करते हैं। आप बोनस की सेल्स देखेंगे तो आपको गांव में नजर आएगी, क्योंकि उनकी मार्केटिंग, उनके एडवर्टाइजमेंट वो कस्टमर को दिखाते ही उसी तरह, उससे रिलेट करवाते हैं प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप एरियल देखेंगे, आप सर्फ एक्सेल देखेंगे जो मिडिल क्लास के लिए, वो प्राइस सेंट्रिक नहीं है, वो कभी नहीं कहते हम 10 रुपए में एरियल देंगे, वो बड़ा सा घर दिखाएंगे, एक ऑफिस वाला बंदा दिखाएंगे, वो ऑफिस वाला बंदा ऑफिस जाता है, उसकी नींद लग जाती है, या रेस्टोरेंट, एक बड़ा सा रेस्टोरेंट में वो बैठा हुआ है, वो कुछ ऑर्डर करता है, उसके उससे लग जाता है, तो उसकी वाइफ कहती है कि ब्राइड से दूर जाएगा जो भी। अब वो क्या दिखाता है? वो मिडिल क्लास, जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, जिससे रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, आपकी मार्केटिंग उससे रिलेटेड हो। हम ई कॉमर्स में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि चाइनीज और गंदे और फजूल किस्म के जो एड्स होते हैं, टारगेट प्रोडक्ट मैंने रख दिया मिडिल क्लास की, क्वालिटी मेरी टॉप नॉच है, प्राइस मेरी मिडिल क्लास से रिलेटेड है। जब एडवर्टाइजमेंट पे आया हूं तो मैं लोअर क्लास के एड्स चला रहा हूं, लोअर क्लास के प्रोडक्ट्स, ग्राफिक्स यूज कर रहा हूं, वीडियोस यूज कर रहा हूं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो कस्टमर उस एड से रिलेट ही कर पाएगा। मिडिल क्लास उस एड से रिलेट नहीं कर पाएगी, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, उसका वो प्रोडक्ट लोअर क्लास को नजर आएगा, वो उससे रिलेट तो कर पाएगा, वो प्राइस में जब आएगा वहां पे रिलेट नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोगों को पाकिस्तान में इशू आता है कि अली भाई प्राइसिंग पे कैसे खेले, प्राइसिंग पे कैसे खेले, प्राइसिंग पे कैसे खेले। मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ वो भी बेच रहे हैं, 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 कस्टमर आखिर में प्राइस देखता है।
मेरा जो लाइशा कॉस्मेटिक है उसमें सबसे हम एक प्रोडक्ट है 1600 का और वो लैशेस, ठीक है, फीमेल्स की आई लैशेस। अब दराज में जाए आपको 300 रुपए से ऊपर लैशेस नहीं मिलेंगी। मैक्सिमम प्राइस एक लैशेस की 300 रुपए, हम 1600 रुपए की सेल करते हैं। मेजर और इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। मिडिल क्लास प्राइस सेंट्रिक नहीं है। अब मिडिल क्लास प्राइस सेंट्रिक है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट कंपेयर किया जाता है हुदा ब्यूटी से। हुदा ब्यूटी की लैशेस 7000 की, मेरी लैशेस 1600 रुपए की। मेरी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं है, और मेरा ब्रांड मिडिल क्लास के लिए, तो मेरा प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है। तो प्राइस सेंट्रिक कभी नहीं रहना। अगर आप प्राइस की उसमें जाएंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ही क्यों करना है। पाकिस्तान में आप पत्थर उठाएं तो आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी, प्रोडक्ट्स में भी नजर आएंगी, ई कॉमर्स में भी नजर आएंगी। आपने सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। 10 कैटेगरीज ऐसी हैं जो मैं इधर नाम लूंगा और आपको उसमें ब्रांड, उसमें प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगे। 22 करोड़ की आबादी है, 3% ऑनलाइन बाइंग है। इंडिया में 18% ऑनलाइन बाइंग है, यूएसए में 65% ऑनलाइन बाइंग है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, हम दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क। 22 करोड़ लोगों को किसी ने तो कैटर करना है, ठीक है। तो किसने कैटर करना है, हम नहीं कैटर करना। अब इंडिया की मार्केट बड़ी क्यों हुई है कि जो टॉप 10 कंट्रीज थी जिसमें ऑनलाइन बाइंग सबसे कम थी, उसमें इंडिया हमसे आगे था, मतलब उसकी आबादी बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा इंडिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यूके यूएसए के बड़े इन्वेस्टर्स, सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स इंडिया पे फोकस थे। लेकिन इंडिया भी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुका है, ई कॉमर्स उनके मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच चुकी है। इंडिया में अब एक ई कॉमर्स स्टोर को 15 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब की इन्वेस्टमेंट लेने में कोई इशू नहीं होता। ये सेम पाकिस्तान में रिपीट होगा, क्योंकि दुनिया की जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आबादी के लिहाज से ये वाहिद मुल्क रह चुका है जिस पे 3% ऑनलाइन बाइंग है, और ये 2025 से 2030 तक 15% तक जानी है। यूके यूएसए में ऑनलाइन बाइंग 65% है, और 2030 तक 70% पर जाएगी, सिर्फ 5% इंक्रीज होगा। पाकिस्तान की ऑनलाइन बाइंग 3% है, और ये 15% तक जानी है 2028 से 30 तक। तो 3% से 15% का 5x होगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ 3 सालों के बाद इन्वेस्टर जिस तरह जमीन पे आजकल पैसे लेकर घूमते थे ना, साल 2 साल पहले, जमीन पे इन्वेस्टमेंट कर दो, जमीन पे इन्वेस्टमेंट कर दो, जमीन प्लॉट ले लो, घर ले लो, फ्लैट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इन्वेस्टर मार्केट में पैसा लेकर घूम रहा होगा कि भाई ई कॉमर्स स्टोर का ऑनर अच्छा मिल जाए, भाई जो अच्छी नीश में काम कर रहा हो वो मिल जाए। ये 2 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो। मैंने अभी इस मार्केट में 2 करोड़ पे रेस किया लाइशा के ऊपर 1 साल में। तो और दूसरा फोकस आपने ये करना है कि आपने अपने बिजनेस प्लान में इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर बनाना। ठीक हो गया, तो चेक आ चुकी है मेरी। 10 मिनट में जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। परसों मेरी वर्कशॉप है ई कॉमर्स से रिलेटेड, ही है 11 बजे। जिन बच्चों को समझ नहीं आई परसों वर्कशॉप पे मिल लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और आप में क्या फर्क है? हर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का कोच होता है और वो दुनिया का बेस्ट है। आपका कोच है कोई? टीचर्स कोचेस नहीं होंगे, ना ही मेंटोर्स कोचेस होंगे। तो वो अगर दुनिया का बेस्ट प्लेयर है तो उसको कोच की क्या जरूरत है? वो तो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है ऑलरेडी, दुनिया का नंबर 1। तो आपका कोच क्यों नहीं है कोई? क्योंकि आप तनकीद से एलर्जिक हो गए, और कोचेस का काम है तनकीद करना। कोचेस का सबसे पहले काम होता है कि ये काम तू गलत कर रहा है, और जब तनकीद सुनने की हिम्मत चली जाए तो आप लोग कोचेस से महरूम हो जाओ। और कोच का कोई टाइटल नहीं होता, कोच आजम जमील सूट पहन के नहीं आता। अगर कोई सड़क पे जाता हुआ बंदा भी आपको बता दे और आपकी बेहतरी में शामिल हो जाए
वो कोच है, उससे एलर्जिक ना होना, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। अब आप लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि उमैर जलियांवाला के बाद ये तो लगता है कि कोई मरसिया पड़ रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों से, मेरी अब उम्र वो हो गई है डांटने वाली, मेरी पढ़ाने वाली उम्र खत्म हो गई, डांटने वाली उम्र आ गई, क्योंकि आप मेरे बच्चों की तरह हो गए। फिर यू आर अ जनरेशन ऑफ व्हाट आई कॉल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या चीज होती है? ग्रेटिफिकेशन किसको कहते हैं? तसल्ली को, सेटिस्फैक्शन को। आप लोगों को अब आदत है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। आप लोगों को भूख लगी हो तो ये फोन निकलता है और 2 बटन दबते हैं और 10 मिनट के बाद गेट पे पिज्जा आया होता है। आप लोगों को कुछ चीज गाना सुनना है तो 2 सेकंड में एक ऐप खुलती है और कान में आप हेडफोन्स लगाते हो तो वो गाना आपको मिल जाता है। फिल्म आपको देखनी हो तो 10 मिनट में आपको फिल्म मिल जाती है। कोई लिबास अच्छा लगे तो कैश ऑन डिलीवरी का बटन दबाते हो तो 2-3 दिन में वो कमीज भी आ जाती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपका राइट है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपका राइट है। गलती बताओ कहां करते हो? जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इन 2 एरियाज में अप्लाई करते हो जहां नहीं करना चाहिए। एक, किसी हुनर को सीखना, उसमें कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं। किसी फन को सीखना, किसी काम को सीखने में कोई ऐप नहीं बनी दुनिया में, वो आपको गाइड कर सकती है, लेकिन एक उम्र गुजर जाती है उस फन को सीखने में। उसके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत ढूंढना। और दूसरी चीज जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चलती वो है रिश्ते। कोई रिश्तों के लिए भी ऐप नहीं बनी। मेरी बेगम से लड़ाई होती है, आई विश कि कोई ऐप हो और मैं कोई बटन दबाऊं, या बेगम ठीक हो जाए या मैं ठीक हो जाए। So don't use this in these 2 areas. Other than this, so bismillah. This is your time, this is your technology, and you have the right to use it. Okay? आगे, integrity. आप लोग अपनी जिंदगी या अपनी जो कारोबारी जिंदगी है उसका आगाज करते हैं, इंटेग्रिटी का पीछा नहीं छोड़ना, ऑनेस्टी का पीछा नहीं छोड़ना। हाँ, दोस्तों यारों में जाहिर है हमने गप्पे भी लगानी है, हमने एग्जैजरेट भी करना है, हमने आगे पीछे 100 काम करने हैं, वो ठीक है, लेकिन काम में कभी भी झूठ बोल के अपने काम में तरक्की मत ढूंढना। आप लोग पैसा चोरी नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गुनाह है, पैसा चोरी तो क्राइम है। तो सॉफ्टवेयर क्यों चोरी करते हैं? उसमें क्या फर्क है? What is the difference between stealing software and stealing money? Is only one difference, क्योंकि सॉफ्टवेयर चोरी करने में पकड़ नहीं है। बिल गेट्स तो नहीं आएगा ना लैपटॉप खोल के देखेगा, कहेगा कि तुमने मेरी विंडोज जाली लगाई है 20 रुपए की या सही लगाई है, तो पकड़ से डरते हो। तो वो कहां गए जो यहां बैठे हुए थे? और जो शाहरग से भी करीब था वो कहां गया? इंटेग्रिटी पार्शियल नहीं हो सकती कि मैं 30% सच्चा हूं या मैं 50% सच्चा हूं। Either you are an honest person or you are a dishonest person. और मेरी आपसे मंती लग रहा है मुझे, मंतू तो नहीं लग रहा। मैं देखो ये क्या है? लाइक इट्स डम्पलिंग।
students or what? You got it from somewhere else? We are actually startup incubated inside NICAD. Okay. And we made it from the scratch. The whole technology and pretty much everything that you're looking at, we created it. Yes. Have you like launched any pilot project of this? We will. We are planning to by the end of June or July next year, inshallah. We are already in conversations with the manufacturers and technology constructors, and depending on how it goes, if everything goes well, inshallah, we'll be live in June or July. You can have one. Your handout? Sure. There you go. Thank you. This looks to me like a mines, you know. Like? Mines. I'm just saying that this physique of this device looks like Structure a mine, like outer. no? Do you know the mines, the explosive Yeah. mines? See? We just wanted to give it an aesthetic look to it. इसके साथ ना एक ऐसे करके And the ना paper. बॉडी बिल्डिंग पोस्ट लगा देते हैं आर्म्स में, एस्थेटिक लुक हो जाएगा. No, not especially in paper. It seems like that. Okay, we're talking about this. It's like a turtle to me. Yeah, like it varies person to person. Perception पे depend करता है. Yeah, that's nice. Thank you. Anytime. रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम. Good afternoon everyone. My name is Muhammad Asif. I am the founder and CEO of Mama Organic. How many people about Mama Organic? Please raise your hand. मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट्स हैं. मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास इतने सीनियर बैठे हुए हैं, IT प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मुझे जो टॉपिक दिया गया हुआ है, दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा. नंबर 1, मामा ऑर्गेनिक की जर्नी क्या थी, जो कि, और सेकेंड ये कि ई कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान से. मैं थोड़ा सा अपना अपने बारे में बता दूं. आई स्टार्टेड माई जर्नी इन डिजिटल वर्ल्ड बैक इनटू 2011. आज से 13 साल पहले मैंने अपनी जर्नी का आगाज किया था, जो कि एज अ फ्रीलांसर से. पहले 3 साल मैंने फ्रीलांसिंग की, और फ्रीलांसिंग करते हुए जब $5 का होता था, और मार्केट प्लेसेस से मैंने अपने कैरियर का आगाज किया. और वेरी सून आफ्टर 3 इयर्स मुझे लगा कि मार्केट प्लेसेस पे आप काम करते हुए कितनी सक्सेस ले सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं, चूंकि मार्केटिंग और डिजिटल सर्विसेज के अंदर था, तो मैंने अपना जो प्लेटफॉर्म था उसको बिल्ड किया, और ऑनवर्ड 2014 से लेकर 2013 से लेकर 2018 तक उस जर्नी में एज अ मार्केटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग सर्विसेज के अंदर हम ई कॉमर्स पे काम कर रहे थे. ई कॉमर्स में कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के अंदर काम करते करते हमने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया, ना कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, US, UK. इस सारी जर्नी के अंदर मुझे दो कैटेगरी के अंदर हमेशा से इंटरेस्ट था, और यही वो इंस्पिरेशन जर्नी रही जो मुझे मामा ऑर्गेनिक तक लेकर आई. 2 कैटेगरी थी. नंबर 1 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और जो सेकंड कैटेगरी थी वो थी फैशन एंड लाइफस्टाइल. इन 2 कैटेगरीज की बात, तो इन 2 कैटेगरीज के अंदर मैंने बहुत सारे ब्रांड्स देखे. इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल बात करें, तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर और फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंदर इंस्पिरेशन जर्नी यहां से स्टार्ट हुई कि जब आप एज अ मार्केटर, एज अ ई कॉमर्स, आप ब्रांडिंग, पोजिशनिंग, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, सेल्स के अंदर थे, तो वो इंटरेस्ट वहां से चलता चलता फ्रॉम सर्विसेज टू, मुझे जब कोविड का समय स्टार्ट हुआ तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि बस अब सर्विसेज बहुत कर ली. पहले 3 साल आपने एज अ फ्रीलांसर काम किया, उसके बाद आपने 5 से 6 साल एज अ मार्केटर काम किया, जिसके अंदर आप ब्रांडिंग, कम्युनिकेशन और सेल्स पर काम कर रहे थे. वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और हमने मामा ऑर्गेनिक का आगाज किया जब फर्स्ट टाइम कोविड आया इनटू
2020 मार्च के अंदर इस आइडिएशन पे, जहां हम देख रहे थे कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे थे, वही इस आइडिया को हमने लिया कि जहां पे हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हुए हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? जहां पे आपकी ब्यूटी है, आपके स्किन है, हेयर है, बॉडी है, उसको आप क्यों नहीं बेहतर कर सकते? उस सारी जर्नी को देखते हुए इंडिया को मैं देख रहा था कि हमारी नेबर कंट्री बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये वो नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, उनको ये लेकर आए ई कॉमर्स पर और ऐसा स्टार्टअप D2C ब्रांड्स काम किया। मामाअर्थ की बात करें, वो की बात करें, नायका की बात करें, शुगर की बात करें या मैंट्रा की बात करें, ये वो हमारी जर्नी थी जो मामा और इनकी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई और इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया। अगर इंटरेस्ट की बात करें और ग्लोबल इस मार्केट की टैम की बात करें, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज था, ग्लोबल मार्केट जो इस वक्त $600 बिलियन की मार्केट है जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर है। इसी तरह यूएस की बात करें $100 बिलियन, एशिया की बात करें तो $200 बिलियन, चाइना की बात करें $100 बिलियन, पाकिस्तान की बात करें तो $4.5 बिलियन मार्केट साइज है जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का, जिसके अंदर कलर कॉस्मेटिक्स भी आता है, हेयर केयर भी आता है, स्किन केयर भी आता है। और इंडिया की बात करें तो $30 बिलियन यहां से ये आइडिया ड्राइव हुआ। तो फिर हमने मामा ऑर्गेनिक का आगाज किया। 2020 के अंदर हमने R&D स्टार्ट की और फाइनली हमने 63 प्रोडक्ट्स के साथ बैक इनटू जैन 2023 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तान मामा ऑर्गेनिक एज अ D2C ब्रांड, प्रोडक्ट बेस्ड D2C स्टार्टअप, जो कि वी आर ओनली वन नेचुरल नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक लीडिंग ब्रांड है जिस कैटेगरी के अंदर D2C, जहां पे इस वक्त हमने 63 प्रोडक्ट्स से इसका आगाज किया था, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह विद द 130 प्लस प्रोडक्ट्स विद द 200 SKU स्किन, हेयर, बॉडी और बेबी के अंदर वी आर द ओनली वन इन दिस कैटेगरी, जहां पे सिर्फ इतना ही नहीं था, हमने यही नहीं किया, उसके साथ हमारी R&D अलग इन हाउस R&D, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, इवन के टेक्नोलॉजी, हमने इस इकोसिस्टम को बिल्ड किया जहां पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और हमने सोचा कि जहां पे हमारी नेबर कंट्री, जहां से बहुत दूर नहीं है, ये बिल्कुल इंडिया हमारे साथ है, जहां हमने देखा कि वहां पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम था वो बड़ा, व्हाई नॉट हम उस पर क्यों नहीं काम कर सकते? फिर हमने इस विजन को बनाया कि मामा ऑर्गेनिक को हम पाकिस्तान का फर्स्ट स्टार्टअप बेस्ड यूनिकॉर्न बनाएंगे। यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन प्लस की जिसकी वैल्यूएशन होती है। ये इसकी जर्नी थी और इस जर्नी में जहां पे हम यूनिकॉर्न की बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि यूनिकॉर्न की कोई नई बात है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे सोचें कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह जिस विजन के साथ हमने मामा ऑर्गेनिक को स्टार्ट किया, हम इसको यूनिकॉर्न बना के छोड़ेंगे। ये यूनिकॉर्न पाकिस्तान में तो नहीं बना, इस कैटेगरी में तो नहीं बना, लेकिन यूएसए में नाउ 663 यूनिकॉर्न, चाइना विद द 170, इंडिया हमारे साथ है विद द 70 यूनिकॉर्न, और उसके बाद फिर यूके भी आता है। और फिर हम अगर इंडिया की बात करें, नायका with a $6 billion plus की valuation, Mamaearth with a $3 billion valuation, Mantra $1.5 billion, Walskins has $1 billion और Sugar Cosmetics $750 million। ये कोई नई बात नहीं है, इंडिया के अंदर हो सकता है, why not? हम पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। ये वो जर्नी है। अब पाकिस्तानी यूनिकॉर्न पे आते हैं। कितने यूनिकॉर्न है? आप में से को बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी बेस्ड प्रोडक्ट बेस कितने यूनिकॉर्न? जी भाई, कितने यूनिकॉर्न है पाकिस्तान के अंदर जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन प्लस की है? सबसे पहला क्रीम आता है, इसके बाद कोई एक और आता है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी यूनिकॉर्न नहीं है। पाकिस्तान के यूनिकॉर्न है, लेकिन पाकिस्तानी का बनाया हुआ यूनिकॉर्न नहीं है।
अब जो मार्केट साइज मैंने पीछे दिखाया 2023 के अंदर कि हमारा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर मार्केट साइज क्या है, 2030 के अंदर क्या होगा। 2030 के अंदर अगर हम ग्लोबल टैम की बात करेंगे जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के अंदर $750 बिलियन का होगा। पाकिस्तान की बात करें तो वो इस वक्त $4.5 बिलियन का है, जहां पे अब ई कॉमर्स की बात करें तो $250 बिलियन जो सालाना है वो ई कॉमर्स पर बिकता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के सेगमेंट का 5 to 7% ऑनलाइन बिकता है और जो मार्केट साइज बढ़ेगा $6.5 बिलियन पे जाएगा 2030 के अंदर और $757 मिलियन हम ई कॉमर्स कर रहे होंगे 2030 के अंदर। तो ये वो पोटेंशियल है इस मार्केट का। इस मार्केट के अंदर काम क्यों नहीं हुआ? वो भाई ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर यूनिकॉर्न नहीं है, यूनिकॉर्न का रेफरेंस होगा तो हम यूनिकॉर्न बनाएंगे। अब चलते हैं इंडिया में क्यों हुआ। अब आप ऐसे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते भी हैं, देखते भी हैं, ह्यूमन माइंड चलता है रेफरेंस पे। अब क्रिकेट की बात करें, सईद अनवर ने आई होप सो के 96 में या 93 95 में 196 किया, कोई सोच नहीं सकता था कि क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर डबल सेंचुरी हो सकती है। 2010 में पहली दफा सचिन तेंदुलकर ने 200 किया और ये 2010 की बात है, आज है 2023, 13 लोगों ने डबल सेंचुरी की है। उससे पहले लोग सोचते थे कि नहीं हो सकता, उसने किया, लोगों को लगा कि हो सकता है, फिर लोगों ने भी किया। अब सिर्फ हम रिलेट करते हैं आईटी से, तो यूएस की बात करें, इलॉन मस्क को सब जानते हैं, लेकिन इलॉन मस्क को और इलॉन मस्क के जो 7 लोग थे जिन्होंने पेपल बनाया था, आज भी अगर आप गूगल करेंगे तो पेपल माफिया क्या था, वो पेपल माफिया था जिन्होंने यूएस के अंदर रेफरेंस बिल्ड किया कि पेपल बना है, आईटी का आगाज हुआ है, तो फिर उसके बाद अमेज़न बना, सब कुछ बना, रेफरेंस। अब इंडिया की तरफ आते हैं, फ्लिपकार्ट, आप सब लोगों ने सुना होगा कि फ्लिपकार्ट क्या है। फ्लिपकार्ट मुकेश बंसल और बिनी बंसल ने इंडिया के अंदर आगाज किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम का आगाज भी वहीं से हुआ और उन्होंने उस पहला यूनिकॉर्न बनाया जो कि फ्लिपकार्ट था और उस फ्लिपकार्ट माफिया के बाद आज 70 यूनिकॉर्न है। तो हम क्यों नहीं रेफरेंस बिल्ड कर सकते? हमारे पास रेफरेंस क्यों नहीं है? क्या हमने सिर्फ इसी बात से आगाज करना है? हमने बहुत सिखा दिया $100 कैसे बनना है, 200 कैसे बनना है, उससे आगे कौन लेके जाए? उससे आगे भी हम ही लेके जाएंगे और वहां हमें रेफरेंस बिल्ड करना है। हमने, आप सब लोगों ने, हमने वो रेफरेंस बिल्ड करना है, उस तरह से ये सिस्टम को लेकर चलना है जिसके अंदर चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर, हम कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आज तक हुआ कि ये रेफरेंस बिल्ड नहीं हुआ और मामा ऑर्गेनिक इंशाल्लाह वो रेफरेंस बिल्ड करेगा और अगले 3 सालों में हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए बात बड़ी हो और कुछ लोग इस बात पे हंसे भी कि ये नहीं हो सकता। आप भी देखेंगे, हम भी इंशाल्लाह ये है कि नेक्स्ट ईयर्स के अंदर मामा ऑर्गेनिक पाकिस्तान का फर्स्ट प्रोडक्ट बेस्ड यूनिकॉर्न होगा और पाकिस्तानी का बनाया हुआ यूनिकॉर्न होगा। हम वो रेफरेंस बिल्ड करेंगे जिस रेफरेंस पे ना सिर्फ फिनेंशियल यूज करेंगे, हम इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को, अगर दूसरी तरफ बात करें तो सिर्फ आईटी की बात करते हैं, हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो आईटी के अंदर फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ आईटी सेक्टर और हम फ्रीलांसिंग के अंदर घूमते घूमते अपनी सारी जर्नी को मुकम्मल कर लेते हैं, उससे ज्यादा कभी सोचा ही नहीं था। तो बड़ा सिंपल है, हमें वो रेफरेंस बिल्ड करने हैं, हमने उस यूनिकॉर्न का इनिशिएट किया है और हम मिलके इस पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। ऑलवेज ड्रीम बिग, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर गिव अप। और जब तक ये नहीं होगा, हम इस आईटी की बहुत सारी चीजें तो कर लेंगे, लेकिन जब तक रेफरेंस नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you so much.
And yet again, Mr. Ali Khan Sawati.